কথা আছিল কংগ্ৰেছে নকৰিলে কিন্তু আগন্তুক দিনত স্মল মিলৰ লগতে অশোক পেপাৰ মিল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ গঠন কৰা হ'ব পৰম সদা ৰাইজ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী লোকৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে মোদী ডাঙৰীয়া আগন্তুক দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব ল'ব আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি যোগ্যতা দক্ষতা দৃঢ়তা সততা আছে সেই সততা আৰু দৃঢ়তা যোগ্যতাৰ আধাৰত আগন্তুক দিনত অসমখন অন্যতম অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতভূমিত গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব গতিকে আজি এই শুভক্ষণত মই দীঘলীয়া নকৰো এইখন বীৰ চিলাৰায় দেশ বীৰ লাচিতৰ দেশ আমি বীৰ চিলাৰায় আৰু বীৰ লাচিতৰ আদৰ্শৰে বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিব লাগিব সেইবাবে মোৰ বিশেষ আহ্বান আমি অসমীয়া মাৰোৱাৰী বিহাৰী বঙালী পঞ্জাবী নেপালী হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বুদ্ধিষ্ট জৈন শিখ সকলো একাকাৰ হৈ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'বই লাগিব আমাৰ অসম আমাৰ মাটি আমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আগন্তুক দিনত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিব লাগিব এই কথা স্পষ্ট গতিকে আজি এই শুভক্ষণত মই বিশ্বাস ৰাখিছো এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত বসবাস কৰা হিন্দু বাঙালীসকলক নানা ধৰণে কংগ্ৰেছে বিধি সজাই অত্যাচাৰ কৰিলে এই অত্যাচাৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে স্থায়ীভাৱে বন্ধ হ'ব আৰু হিন্দু বেংগলীসকলক নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা হ'ব পৰম সদা ৰাইজ মই বিশ্বাস ৰাখিছো আজি এই শুভক্ষণত আগন্তুক দিনত অসমৰ ভৱিষ্যত নিশ্চিতভাৱে মোদী ডাঙৰীয়াই সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে ৰাষ্ট্ৰজুৰি কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি অপহৰণৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জনসাধাৰণ ঐক্যবদ্ধ হৈছে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 120 কোটি জনতাই একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে আগন্তুক দিনত মোদী ডাঙৰীয়াৰ দেশৰ নেতৃত্ব ল'লেহে দেশ বাচিব ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা পৰিব গতিকে সেইবাবে সকলোৱে আন্তৰিকতাৰ বিচাৰে আনকি ঈশ্বৰ আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে ভয় ভোগ ভ্ৰষ্টাচাৰ মুক্ত এখন সমাজ ভাৰতভূমিত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু সুশাসন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিব গতিকে আজি সেইগৰাকী আমাৰ মহান নেতা আমাৰ এই মহামঞ্চত উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৰে ওচৰত আবেদন চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোক সৌভাগ্যৱান চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ দৰে এগৰাকী দক্ষ নেতা আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে পাইছে অহা 24 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোক সকলোৱে শতকৰা 100% লোকে পদুমৰ চুবুৰীত ভোট দি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক এই অঞ্চলৰ পৰা অসমীয়াৰ হকে মাত মাতিবৰ বাবে আপোনালোকে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰাই তেখেতক দিল্লীলৈ পঠিয়াওক এইটো আপোনালোকৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ কাৰণ এই সময়ত অসম যদি কোনোবাই ৰক্ষা কৰিব পাৰে অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ যদি কোনোবাই ৰক্ষা কৰিব পাৰে সেইটো কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰণ বদৰুদ্দিন নেতৃত্বাধীন AIUDF দলটো কেৱল বিদেশী স্বাৰ্থত জন্ম লাভ কৰিছে অবৈধ বাংলাদেশী বিদেশী সুৰক্ষাৰ বাবে তেখেতসকলৰ অসমৰ ৰাজনীতি পথাৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই দলৰ লগত কংগ্ৰেছে আজি মিত্ৰালি স্থাপন কৰি এই লোকসভা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানে অবৈধ বাংলাদেশী বিদেশীক এই বঙাইগাঁৱত প্ৰশ্ৰয় দিয়া পৰম সদা ৰাইজ AIUDF আৰু কংগ্ৰেছ এটা মুদ্ৰাৰ হিপিটি আৰু ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ মূল লক্ষ্য আছিল বিদেশী বহিষ্কাৰ কিন্তু সেই দলটোৱে আজি AIUDF ফলত মিত্ৰালি স্থাপন কৰি বঙাইগাঁও আৰু দৰঙত তেখেতসকলে জিলা পৰিষদ চলাইছে গতিকে এই তিনিটা দল সম্পূৰ্ণৰূপে বাংলাদেশ পক্ষত আৰু অসমীয়াৰ পক্ষত ভাৰতীয় পক্ষত যদি কোনোবা দল আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পৰম সদা ৰাইজ সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট দিয়ক ভোট নষ্ট নকৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম এতিয়া মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক উষ্ণ আদৰণি জনোৱাৰ অৰ্থে চমু এক বক্তব্য ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভাবি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী আৰু আমাৰ দলৰ সভাপতি শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰভাৰী শ্ৰী সুধাংশু মিত্তালজী আৰু আমাৰ MLA দ্বয় আৰু শ্ৰদ্ধেয় সেৱাৰ্থলী ৰাইজ আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ সদস্যসকল আমাৰ এতিয়া মোক মানে আদৰণি ভাষণ দিব কৈছে মই আদৰণি ভাষণ নিদিওঁ কাৰণ মই ভাষণ দিছোঁৱে আগতে আমাৰ কথা হ'ল কি আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি কিমান ভাল পাওঁ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সেইটোতো আপোনালোকে জানেই
তে কিমান ভাল পাওঁ আমি এটা ষ্টেণ্ডিং অভেশ্যন দিওঁ। সকলোৱে থিয় হৈ হাত দাঙি দিয়ক, সকলোৱে থিয় হৈ হাত দাঙক, সকলোৱে থিয় হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক হাত, সকলোৱে হাত দাঙক, সকলোৱে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক, পিছফালৰ মানুহে হাত দাঙক, চব হাত দাঙক। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हिंदुस्तान का भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा पीछे हैं। धन्यवाद। जय आय अहम, जय आय अहम। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सर्बानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री सुधांशु जी, यहां के लोकप्रिय उम्मीदवार और एक जुझारू नेता मेरे मित्र भाई चंद्रमोहन पटवारी, मंच पर विराजमान सभी एमएलए, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और बहुत बड़ी संख्या में आए हुए मेरे भारत के भाग्य विधाता भाइयों और बहनों, यहां मेरे कुछ गुजराती परिवार भी दिखाई दे रहे हैं। केम छो? मजा छो? मैं पहले आसाम में संगठन का कार्य करता था, उसके कारण सैकड़ों परिवारों से मेरा बड़ा निकट परिचय रहा है। यहाँ के सुख दुख को भली भांति जानने का, समझने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, या संगठन का काम करता था, तो मैं देख रहा था कि ये प्रदेश कितने अच्छे लोग हैं, परमात्मा ने क्या कुछ नहीं दिया है, लेकिन सरकारों ने, नेताओं ने आसाम को बर्बाद कर दिया है जी। भाइयों बहनों, राजा नरो नारायण को याद करें तो यहां के लोग कितना गर्व महसूस करते हैं। जहां विश्ववीर शिला राय का स्मरण करें तो हमें कितना गौरव महसूस होता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज आसाम का हाल क्या कर दिया है। भाइयों बहनों, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये जैसे चिंता है, वैसे आसाम को बचाया कैसे जाए, ये एक चिंता का विषय है। अब तय करो आसाम के लोग, आप खुद आसाम पे राज करना चाहते हो
कि बांग्लादेशियों से करवाना चाहते हो? आप तय करो भाई। ये दिल्ली आपका भाग्य तय नहीं कर रहा है और न ही आज की दिल्ली में आपके भाग्य की चिंता करने की ताकत है। हम कई दिनों से अखबारों में तीखे तीखे समाचार पढ़ रहे थे। कभी कभार उदासीनता के समाचार सुनने को मिलते थे। आज मुझे पहली बार सुबह सुबह थोड़ा मनोरंजन मिल जाए ऐसे समाचार पढ़ने का सौभाग्य मिला। 10 साल के बाद বঙাইগাঁৱৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ আৰু ইটো দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে। ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হৈছে দৰ্শন খেলপথাৰত আৰু মোদীৰ ভাষণ চলি আছে কাকৈজানা খেলপথাৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা। দুটা দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰায় সমসাময়িকভাৱে দুজনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থিত্ব ৰাখি কংগ্ৰেছ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাহুল গান্ধী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণ আৰম্ভ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হৈছে নগাঁৱৰ এই দৰ্শন খেলপথাৰত। ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হেলিকপ্টাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে। প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ভিজুৱেলে প্ৰথম দৃশ্য দেখিবলৈ পালে কেৱল নিউজ লাইভত। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণ দি আছে বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানাৰ পৰা আৰু ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হৈছে হেলিকপ্টাৰ যোগে। তেওঁ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে ইয়াত নগাঁৱৰ দৰ্শন খেলপথাৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। लेकिन क्या बताया कि लोग मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन सिंह कहते हैं, गलत है। वो तो बोलते हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी जो दिल्ली में किताब निकली है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उससे ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री कितना बोले कितना नहीं बोले इसका कोई महत्व नहीं है। देश तो ये जानना चाहता है कि वो बेटे की सुनते थे कि मां की सुनते थे, या मां बेटे की सुन करके चलते थे। भाइयों बहनों, ये बात मान के चलिए, दिल्ली में मां बेटे की सरकार है और 10 साल के पापों का हिसाब ये मां बेटे को देना पड़ेगा। अब वो इससे बच नहीं सकते। जरा प्रधानमंत्री कार्यालय मुझे बताएं, ये मेरे आसाम के कोच और राजवंशी समाज, उसके साथ और 5 जातियां क्या आपके दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? उनको ट्राइबल मानने के लिए वो मांग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्या किया मां बेटी की सरकार ने? मुझे बताइए भाइयों, ये आपकी मांग है कि नहीं है? आपकी मांग है कि नहीं है? आपकी मांग को जवाब दिया क्या? इनके लिए आपका कोई महत्व ही नहीं है। जब चुनाव आएगा तब याद कर लेंगे, फिर 5 साल भूल जाएंगे। अब आपका काम है इनको भूल जाओ। इनको याद रख करके मेरे कोच राजवंशी लोगों का या और मेरे ट्राइबल लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने, एनडीए की सरकार ने जितना नॉर्थ ईस्ट के लिए किया है, 60 साल उनको कुछ करना नहीं आया। मुझे बताइए, हमारा आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सिक्किम हो, ये अष्टलक्ष्मी हमारी है, अष्टलक्ष्मी। ये अष्टलक्ष्मी में आदिवासी पहले से रहता है कि नहीं रहता है? जरा जवाब दो ना। यहां आदिवासी समाज है कि नहीं है? जब आजादी की लड़ाई हुई तब आदिवासी समाज था कि नहीं था? जब 1857 का संग्राम हुआ आदिवासी था कि नहीं था? राम के जमाने में आदिवासी था कि नहीं था? कृष्ण के जमाने में आदिवासी था कि नहीं था?
लेकिन कांग्रेस वालों को दिखाई नहीं दिया। 50 साल सरकार चलाई, उनको पता ही नहीं था कि आदिवासियों के लिए भी सोचना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग डिपार्टमेंट बनाया, अलग बजट बनाया और बजट लगा करके विकास की पूरे देश में चिंता की। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में जितने आदिवासी हैं उसमें से 40% आदिवासियों की सेवा करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को नसीब हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 40% आदिवासियों की सेवा हम भाजपा के लोग करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों का अगर सबसे ज्यादा कल्याण कहीं हुआ है तो इन 4 राज्यों में हुआ है। मैं नॉर्थ ईस्ट को भी कहना चाहता हूं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने डोनर नाम की जो कल्पना की थी और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग मैकेनिज्म बनाया था, उसके बाद ही तो यहां की समस्याओं के समाधान शुरू हुए थे। हमारी यह सोच है कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है उसकी चिंता करना, उसका विकास करना, और इतनी सारी प्राकृतिक संपदा आपके पास है, इसका भला कैसे हो आप मुझे बताइए। मैडम सोनिया जी और श्रीमान राहुल जी, ये आजकल हिंदुस्तान में जा करके ऐसा झूठ फैला रहे हैं, ऐसा झूठ फैला रहे हैं। अभी एक जगह पे उन्होंने बोल दिया, अब पता नहीं उनको उनके भाषण कौन लिखता है, मुझे तो समझ नहीं आता, मुझे दया आती है। अरे आपके पास अच्छे लोग नहीं तो मुझे बताओ, मैं देता हूं आपको। उन्होंने कह दिया गुजरात में सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अब बंद हो रही है। राहुल जी, आपको ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कोई अता पता है क्या? इनको पता है और हिम्मत है तो जरा प्रधानमंत्री कार्यालय सच्ची चीजें देश के सामने रखें। भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ सिर्फ 19% है। अकेले गुजरात में 85% है। लेकिन राहुल जी, आप भी आसाम में हैं, मैं भी आसाम में हूं, हो जाए मुकाबला। आज आप जवाब दो। आज यहां मेरे गुजरात के उद्योगों की छोड़ो, यहां आपका अशोक पेपर मिल बंद क्यों पड़ा है, बताओ, जवाब दो। क्या कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? 3 बार चुन करके आए हैं और यहां के नौजवानों को रोजगार देने वाली एक मिल चालू नहीं कर सकते, मिल चालू नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जिनको कुछ करना ही नहीं है, आप मुझे बताइए भाइयों, ये कैसा आपके साथ धोखा करते हैं, इनको समझिए। जब वोट लेना होता है एक भाषा बोलते हैं और सरकार चलानी है तो पर्दे के पीछे दूसरे खेल खेलते हैं। यहां के सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिलों के अंदर कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों के साथ गुपचुप मिलकर के वहां पर सत्ता में बैठी है कि नहीं बैठी है? भाइयों, बैठी है कि नहीं बैठे, बताओ मुझे। और यहां आएंगे तो बांग्लादेशियों के खिलाफ गालियां देंगे। भाइयों बहनों,
ये ऐसे लोग हैं जो जिलों में तो दोस्ती करते हैं और पार्लियामेंट का चुनाव आए तो कुश्ती का ढोंग करते हैं। वो टीवी पर आपने देखा होगा ना, WWF है, वो पहले एक झूठी कुश्ती होती है, गिरते हैं, पड़ते हैं, मारते हैं, पैसे कमाते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं WWF वाले, ये नूरा कुश्ती करते हैं। जिलों के अंदर बांग्लादेशियों के साथ जीना, सत्ता भोगने वाले लोग कभी भी आसाम का भला नहीं कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हम हमारी नीतियों को छिपाते नहीं हैं। कोई हमें बताए, मेरे बंगाली हिंदू, मेरे बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदू, उनका क्या गुनाह है? क्या उनको डिवोटर करके रखा गया है? क्या इनके साथ अन्याय है कि नहीं है? क्या वो भारत मां के बेटे नहीं है? उनको भारत मां के बेटे का सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उनको भारत मां के बेटे का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहना चाहता हूं, और मुझे मालूम है मैं चुनाव के मैदान में खड़ा हूं, लेकिन एक बात हम नहीं भूल सकते, दुनिया के किसी भी देश में भारतीय मूल का व्यक्ति रहता है, उसके पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, लेकिन वो मूल भारतीय के खून का रंग हमारे रंग से मिला हुआ है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि भारत मां का संतान दुनिया में कहीं होगा, उसका सम्मान, उसका गौरव, ये जिम्मेवारी भारत की होनी चाहिए, और ये हम करना चाहते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति में हमारे अपनों को प्रताड़ित किया जाए, कैंपों में रखा जाए। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र के अंदर ये दोगली नीतियां कभी भी देश का भला नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, मैं यहां के मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं। यहां के मुख्यमंत्री ना होते ना तो मेरा नाम कौन जानता भाई। वो पूरी जिंदगी में जितनी बार कामाख्या देवी को याद नहीं किया, उससे ज्यादा वो मुझे याद करते हैं। उनकी सुबह मोदी से शुरू होती है और शाम मोदी से ढलती है, और मैं अपने आप को प्रसन्न महसूस करता हूं कि मोदी नाम की मेडिसिन यहां के मुख्यमंत्री को जिंदा रखती है। भाइयों बहनों, आपने दिन रात मोदी 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 गीत गाए। अच्छा होता आसाम के लोगों की थोड़ी चिंता करते। भाइयों बहनों, आज भी आसाम में 55% महिलाएं अनपढ़ है। मुख्यमंत्री जी, इसका कोई जवाब है आपके पास? 98% घर ऐसे हैं, धक्का लगेगा देशवासियों को, जिस आसाम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जहां सबसे ज्यादा पानी है, यहां की नदियां लबालब भरी पड़ी हैं, लेकिन इस आसाम में मुख्यमंत्री जी 98% घर ऐसे हैं
जहां नल भी नहीं है और नल में पानी भी नहीं है। भाइयों बहनों, आज भी यहां की महिलाओं को शौचालय के खुले में जाना पड़ता है। जरा मुख्यमंत्री जी, 75% घर ऐसे हैं जहां बिजली की लाइन नहीं है। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में आसाम जैसा प्राकृतिक संपदा वाला राज्य, जहां पर भाइयों बहनों बिजली तक उपलब्ध नहीं है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों, वो दिन रात मोदी के लिए 50 बातें बताते हैं, लेकिन भाइयों बहनों वो अपने राज्य की भलाई करने के लिए चिंता नहीं करते। दिल्ली बर्बाद हुआ मां बेटे की सरकार से, आसाम बर्बाद हुआ बाप बेटे की सरकार से। अगर देश को बचाना है तो मां बेटे की सरकार से मुक्ति दिलाओ, आसाम को बचाना है तो ये बाप बेटे की सरकार से मुक्ति दिलाओ। भाइयों बहनों, आसाम में 2012 में भयंकर बाढ़ आई, लाखों लोग तबाह हो गए। आपके मुख्यमंत्री कहां थे? आपके मुख्यमंत्री कहां थे? मुख्यमंत्री जी, यहां बाढ़ में लोग मर रहे थे और आप अमेरिका में बाढ़ पर अभ्यास कर रहे थे। आप अपने निजी जीवन के सिवाय आसाम के जीवन के सुख दुख की चिंता नहीं करते हो। मेरे नौजवानों, मुझे आप जवाब दो, पूरी ताकत से जवाब दो। आपके माता पिता को जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या आप वैसी जिंदगी जीना चाहते हो? आपके मां बाप को जो तकलीफ झेलनी पड़ी, आप तकलीफ झेलना चाहते हो? आपके मां बाप की जीवन की दुर्दशा हुई, क्या आपकी जिंदगी की दुर्दशा होना चाहते हो? आप चाहते हो आपको भला हो? आप चाहते हो आपका भविष्य सुधरे? आप चाहते हो आप सम्मान से जियो? तो भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी 100 साल तक आपका भला नहीं कर पाएगी। इनको आपकी चिंता नहीं है। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस पार्टी ने 2009 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था वे 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। जरा मुझे बताइए भाई, आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताओ। किसी को रोजगार मिला? आपके गांव में किसी को रोजगार मिला? आपके परिवार में किसी को रोजगार मिला? ये झूठ बोलते कि नहीं बोलते? ये धोखा करते कि नहीं करते? ये वादा तोड़ते कि नहीं तोड़ते? जिन्होंने आपसे वादा तोड़ा उनसे आप नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? भाइयों बहनों, आज देश को बचाने के लिए सबसे पहले आपको बर्बाद करने वालों से मुक्ति की जरूरत है, और इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध कर आया हूं कि आप आसाम के सारे कमल जिता करके दिल्ली भेजिए। अभी तक जितना मतदान हुआ ना, आसाम में भी हुआ, हिंदुस्तान में भी हुआ, करीब 232 सीटों का मतदान हो गया है। इन 232 सीटों के मतदाताओं ने
दिल्ली सरकार को निकालने का काम पूरा कर दिया है। दिल्ली की सफाई का काम तो कर दिया, अब वो तो गए। अब जिनका मतदान है उनका काम है मजबूत सरकार लाना। निकालने का काम कर लिया, आपके जिम्मे है मजबूत सरकार लाना। भाइयों बहनों, अब दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चलेगी क्या? जरा बोलो तो। दिल्ली में अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी क्या? मां बेटा चलाए ऐसी सरकार चलेगी क्या? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी क्या? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मजबूत सरकार बनानी है तो देश में से 300 कमल चाहिए, 300 कमल। आसाम से सारे के सारे कमल आने चाहिए। भाइयों बहनों, कभी कीचड़ में गाड़ी फंस जाए तो ड्राइवर गाड़ी से उतर करके धक्का मारता है तो गाड़ी से कीचड़ से निकल जाती है। जरा ज्यादा कीचड़ में फंसी हो गाड़ी तो 2-4 पैसेंजर मिलकर के धक्का मारते हैं तो गाड़ी निकल जाती है। लेकिन बहुत बड़े गड्ढे में गाड़ी पड़ी हो तो 2-4 लोगों से नहीं चलता है। बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ती है तब जाकर के गड्ढे में से गाड़ी बाहर आती है। ये हमारा हिंदुस्तान कांग्रेस वालों ने बहुत बड़े गहरे गड्ढे में फेंका हुआ है। इस देश को गड्ढे में से बाहर निकालना है, अकेला ड्राइवर नहीं निकाल सकता, 2-4 पैसेंजर नहीं निकाल सकते। देश भर में से मजबूत 300 कमल आएंगे तो गड्ढे में से गाड़ी बाहर निकल के देश आगे बढ़ने लग जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार की जरूरत है। मैं आज आसाम के और देश के 18 से 28 वर्ष के नौजवानों को थोड़ी सीधी सीधी बात करना चाहता हूं। मेरे नौजवानों, मेरी बात को समझिए और इसको चुनाव के नजरिए से मत देखिए। नरेंद्र मोदी की ओर देख करके मत सोचिए, चंद्रमोहन पटवारी को देख करके मत सोचिए, धुबरी के हमारे डॉक्टर सन्याल की तरफ देख करके मत सोचिए। आप खुद को सोच करके जरा मेरी बात को समझिए। देखिए, विद्यार्थी जीवन में +2 की जो एग्जाम होती है, यहां क्या बोलते हैं, +2 बोलते हैं, 12th बोलते हैं, 12th बोलते हैं ना। आज जब 12वीं की एग्जाम होती है, पूरे विद्यार्थी जीवन में 12वीं की एग्जाम बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर 12वीं की एग्जाम में मार्क्स कम आए तो सारे जिंदगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन अगर 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। खुल जाते कि नहीं खुल जाते? 12वीं का महत्व होता कि नहीं होता है? पूरा परिवार, विद्यार्थी, शिक्षक, स्कूल, सब लोग, नहीं ये मत करो 12वीं है, ये मत करो 12, ऐसा करते कि नहीं करते? घर में खाना भी नहीं पकाते, क्यों? 12वीं है। टीवी बंद, क्यों? 12वीं है कि नहीं? क्योंकि 12वीं की एग्जाम विद्यार्थी जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे विद्यार्थी के लिए 12वीं अत्यंत महत्वपूर्ण है, वैसे मनुष्य के पूरे जीवन क्रम में, बचपन से लेकर के मृत्यु तक में, 18 से 28 साल की उम्र सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसकी जिंदगी के सारे निर्णय 18 से 28 में होते हैं। 18 से 28 में उसकी जिंदगी का जो ढांचा बनेगा, उसी पर ही वो 70 साल जिए, 80 साल जिए, 100 साल जिए, सारी दुनिया उसी पर चलेगी। सही है कि नहीं है?
18 से 28 में ही होता है ना। गर्भवती हो, शादी हो, नौकरी हो, व्यापार हो, सब इसी समय होता है। अब मुझे बताइए, एक 75 साल की उम्र का व्यक्ति, उसकी जिंदगी में अगर 5 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 60 साल का रिटायर्ड आदमी, उसकी जिंदगी में 2 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन 18 से 28 की उम्र के नौजवान के जीवन में 5 दिन भी बिगड़ जाए तो उसकी तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नागांव शंकरदेव जी की कर्मभूमि है और शंकरदेव जी ने हिंदू और मुसलमान को जोड़ा था, भाईचारे की बात की थी, भाईचारे की बात की थी और चंद्रकर जी को भी उन्होंने जोड़ा था। जो काम शंकरदेव जी ने यहां किया, वही काम गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में किया। और ये देश जो है, इसकी शक्ति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की एकता है। जब भी हर धर्म के लोग एक साथ खड़े होते हैं, हिंदुस्तान को शक्ति मिलती है। और कोई भी हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करना चाहता है तो वो लोगों को तोड़ता है। अंग्रेजों ने पहला काम क्या किया था, आप याद रखिए। अंग्रेजों ने पहला काम हिंदुस्तान में क्या किया? हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, पहला काम उन्होंने किया। और अगर उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, 300 साल राज किया, तो इसी के बल पे राज किया। जात को तोड़ते थे, हिंदू मुसलमान को एक से दूसरे से लड़ाते थे और इस प्रकार इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। कांग्रेस पार्टी, गोगोई जी लोगों को जोड़ती है, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, महिलाओं को, युवाओं को हम जोड़ते हैं। ये हमारा काम है, ये हमारी राजनीति है। विपक्ष के लोग लोगों को तोड़ते हैं, जैसे अंग्रेज पहले करते थे, हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, वैसे यहां पे आज हिंदुस्तान में बीजेपी के नेता मोदी जी ये काम करते हैं। आते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों से लड़ाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, महिलाओं की पिटाई करवाते हैं। नहीं भैया, ऐसे मुर्दाबाद मत बोलिए। नहीं, मुर्दाबाद सही नहीं है। देखिए, हमारी प्यार की पार्टी है, हमारी प्यार की पार्टी है।